Assalamu alaikum and welcome to Bulls and Bears. میں ہوں سید محمد تانش اور آج ہے سیکنڈ ٹریڈنگ ڈے آف دا ویک ٹیوزڈے کا دن اگست 2017 آج کی ڈیٹ. مارکیٹ نے آج ایک دفعہ پھر سے نیگیٹو زون میں کلوز کیا لیکن ہائیلی وولیٹائل سیشن مارکیٹ میں آج دیکھا گیا. 41,983 کے لیول پر مارکیٹ کلوز ہوئی 170 پوائنٹس کے پازیٹیو نیگیٹو چینج کے ساتھ اور 217 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. ہائیسٹ لیول 42,291 کا رہا, لو واز 41,063. صبح میں مارکیٹ نیگیٹو اوپن ہوئی, پھر اس کے بعد مارکیٹ پازیٹیو زون میں گئی, پھر نیگیٹو زون میں آئی اور ایک دفعہ پھر سے مارکیٹ جو فائنلی 170 پوائنٹس کے ڈکلائن کے ساتھ کلوز ہوتی ہوئی نظر آئی. پازیٹیو سائڈ دیکھی جائے تو تقریباً 240 پوائنٹس تک مارکیٹ پلس گئی تھی, جبکہ نیگیٹو سائڈ دیکھی جائے تو تقریباً 1100 پوائنٹس تک کی کمی جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹرڈے بیسس پر دیکھی گئی تھی. یعنی 41,063 کے لیول پر مارکیٹ میں سپورٹ آئی تھی, جبکہ اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 41,500 مارکیٹ کے لیے سپورٹ لیول ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا 41,063 پر جو ہے وہ مارکیٹ میں سپورٹ دیکھی گئی. 1100 پوائنٹس مائنس سے مارکیٹ جو ہے وہ 920 پوائنٹس کی ایک سگنیفیکینٹ ریکوری شو کرنے کے بعد فائنلی 170 پوائنٹس کے ڈکلائن کے ساتھ کلوز ہوتی ہوئی نظر آئی. لیکن اسٹل دیٹ ڈز ناٹ مین کہ 41,000 کا لیول مارکیٹ کے لیے ایک میجر سپورٹ لیول ثابت ہو سکتا ہے گوئنگ اہیڈ بھی, کیونکہ رول اوور ویک ہے. بہت سارے جو نیگیٹو فیکٹرز تھے لاسٹ ویک میں اس میں ایک فیکٹر اور ایڈ ہو گیا ہے, وہ ہے رول اوور ویک کا. اور پچھلے 3-4 مہینوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ رول اوور ویک میں جو ہے وہ سیلنگ پریشر مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. فی الحال جو مارکیٹ میں نیگیٹو فیکٹرز ہیں وہ ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی, روپی کی ڈیپریسیشن کا فیئر, فارن سیلنگ, ریزروز کا کم ہو جانا, آگے جا کر مزید ریزروز میں جو ہے وہ ڈیٹ ریپیمنٹس کی وجہ سے مزید کمی ہو سکتی ہے, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جولائی کے مہینے میں وائڈ ہو گیا, ساتھ ساتھ رول اوور ویک بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے کل سے. تو تمام فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس ہمیں مزید نیگیٹو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مارکیٹ کی آج کی کیسی پرفارمنس رہی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آج کی مارکیٹ کی اوپننگ 42,153 کے لیول پر رہی, ہائیسٹ لیول 42,291 کا رہا, لو واز 41,063, کلوزنگ رہی 41,983 کے لیول پر, چینج رہا 170 پوائنٹس مائنس کا. ٹرن اوور کی صورتحال دیکھی جائے تو 217 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے, کل کے مقابلے میں 64 ملین شیئرز کا جمپ رہا, جبکہ 12.15 بلین روپیز آج ویلیو آف ٹرن اوور رہی. ٹاپ سے والیم لیڈرز میں سب سے پہلے ایس گارڈ 9 1 روپی کے نیگیٹو چینج کے ساتھ یہ لوور لاک پر کلوز ہوا 15.18 روپیز کے لیول پر. 15.21 ملین شیئرز اس پر ٹریڈ ہوئے. ایشا اسٹیلز میں ہم نے 0.47 روپیز کا نیگیٹو چینج دیکھا, 19.35 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا. 14.18 ملین شیئرز اس میں ٹریڈ ہوئے. سوئی سدرن گیس میں 1.46 روپیز کا نیگیٹو چینج, 33.96 روپیز کے لیول پر کلوزنگ. 11.42 ملین شیئرز کا اس میں آج ہمیں والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اور لاسٹ میں بات کریں گے ٹاپ سیکٹرز والیوم وائز. سیمنٹ 25.70 ملین شیئرز, انجینئرنگ 24.44 ملین شیئرز, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ 21.53 ملین شیئرز, کمرشل بینکس 20.12 ملین شیئرز, جبکہ ٹیکسٹائل کمپوزٹ میں 19.09 ملین شیئرز کی ٹریڈنگ آج ہم نے دیکھی ہے. آج کی مارکیٹ کی ڈیٹیل پرفارمنس کل 925 پوائنٹس کا ڈکلائن مارکیٹ میں دیکھا گیا تھا, اور آج مارکیٹ تقریباً 170 پوائنٹس کے ڈکلائن کے ساتھ کلوز ہوتے ہوئے نظر آئے, جبکہ کل کے مقابلے میں آج والیومز ہم نے بہتر ہوتے ہوئے دیکھے. گوئنگ ایہڈ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا رہے گا, یہ صورتحال کب تک اس طرح سے کنٹینیو رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے, اور اب اس وقت کرنٹلی کیا انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ان تمام چیزوں کے لیے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کامران ناصر صاحب, CEO فرام JS گلوبل. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام. کامران صاحب, مارکیٹ کی پرفارمنس میں کمنٹ چاہوں گا. پچھلے 2 ہفتوں سے مارکیٹ میں تقریباً 4,000 پوائنٹس کا ڈکلائن ہم دیکھ چکے ہیں. اس ہفتے کے آغاز سے ہی مارکیٹ کل 925 پوائنٹس مائنس ہوئی, آج مزید 170 پوائنٹس کا ڈکلائن آ گیا. ریکوری بھی آئی, لیکن آبویسلی ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ریکوری جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہی ہے, آگے ہمیں کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ سکے گی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور جس میں اگر کوئی پازیٹیو سائڈ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ مارکیٹ جس ملٹیپل پہ چلا گیا, یہ ملٹیپل الیکشن جب 2013 میں ہوئے تھے اس سے پہلے کے ملٹیپل پہ سے مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ کے فنڈامنٹلز میں کوئی اتنا بڑا اسٹرکچرل فلا آ گیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے ریجن کے ساتھ, اپنے پیئر گروپ کے ساتھ 55 سے 60% کے ڈسکاؤنٹ پہ آپریٹ کرنا شروع کر دیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور ہولڈنگ پاور ہے, فار دیم دس از دا ٹائم ٹو انویسٹ, اور اس ٹیمپٹیشن سے بچیں. ہر وقت مارکیٹ کے نئے لو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں جا کے سیٹل ہوگی, ہم نے انویسٹمنٹ کرنے جانا ہے تو بالکل کوئی مارکیٹ لیول پہ کرے. یہ ہمیشہ آپ کو ہائنڈ سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا لیول ہائی تھا اور کون سا لو تھا. سو سرٹنلی مارکیٹ کے اندر ویکنس ہے, مارکیٹ اب ایک بیئرش ٹیل کے اندر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اپرچونٹی انویسٹرز کے لیے جن کے پاس کیش ہو اور جو لانگ ٹرم ہولڈ کر سکتے ہوں, جن کی ہولڈنگ پاور ہو, اور جو کہ مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤن سے زیادہ اپسیٹ نہ ہو.
तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव मल्टीपल्स और क्या हो सकते हैं आपके लिए? अच्छा, लेकिन काम मतलब अब कहा जा रहा है कि कल का जो लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट अब टेक्निकली स्पीकिंग बेरिश टेरिटरी में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि मजीद मार्केट में सेलिंग प्रेशर हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए, थोड़ा सा वेट किया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, आप वेट भी कर सकते हैं और इन लेवल पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों स्ट्रेटेजीज हो सकती है। डिपेंड करता है आपका टर्म क्या, लॉन्ग डिपेंड करता है आपका टर्म क्या, और अगर आपकी होल्डिंग पावर है और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आप आराम से 3 से 6 महीने उसको रख सकते हैं और कोई परेशानी नहीं है, ये बल्कि मीडियम टर्म है, इट्स नॉट इवन लॉन्ग टर्म। क्योंकि टेक्निकली शॉर्ट टर्म की जो अंग्रेजी की डेफिनेशन उसमें तो 1 साल होता है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म का मतलब जो होता है वो हफ्ते और दिन गिनते हैं उसको। तो आई थिंक कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेवल पे बिल्कुल करें। मार्केट में अगर कोई क़यामत भी आ जानी है तो ये तो नहीं हो सकता कि सारी मार्केट मुफ्त मिलना शुरू हो जाए आपको। बिल्कुल। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट ने अगर 41,000 के लेवल को टच कर लिया है तो ये भी हो सकता है कि मार्केट 38 भी चली जाए, 39 भी चली जाए, लेकिन जो पी मल्टीपल जिनको देखना चाहिए और जिन सेक्टर्स में जान है उनके अंदर इन्वेस्ट करें और उसके बाद उसको होल्ड करें। एक वैसी बड़ी एक कॉमन थ्योरी है कि आप यू बाय ऑन डिप्स। 20% से ऊपर की मार्केट करेक्शन और ये सारी चीजें ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए यहाँ पे जो ब्रेव होता है ही वुड ऑलवेज विन। लेकिन 100% पोर्टफोलियो में अपना जो है इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा होल्ड करके होल्ड करें। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप इस लेवल के ऊपर 50 रुपए इन्वेस्ट कर लें, या 40 रुपए इन्वेस्ट कर लें, और उसके बाद अगर थोड़ी सी और करेक्ट होती है तो वहाँ पे उसको ठीक है। पैन आउट कॉलर साहब मजीद बात करेंगे इस पर। अख्तर साहब हमें कॉल करेंगे कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कामरान साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मार्केट काफ़ी अरसे के बाद मतलब इतना उसने डिक्लाइन किया है, 41,000 पे आई है, तो जो नए एंट्री लेने वाले हैं तो आप समझते हैं कि वो फर्दर इसका इंतजार करें कि ये मजीद गिरती है, या इस वक्त अगर वो बाइंग करना चाहते हैं डिप्स पे, खासतौर पर ये पेट्रोलियम सेक्टर पे, तो वो कर सकते हैं या उन्हें वेट करना चाहिए फर्दर? कोई बात जो आप कह रहे थे कि मजीद वेट करें या थोड़ा सा वही? बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर उनके पास मैंने एक एग्जांपल दी कि 100 रुपए है तो 40 से लेकर 50 रुपए आप इन लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू इन माय व्यू। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर रहे थे वो, ठीक है। आपकी डिवैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। मोर लाइकली देन नॉट पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन होगी, ये हमें नजर आ रहा है, ये इस पे कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। तो उसके अंदर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि डायरेक्टली इसका बेनिफिशियरी होगा, उनके अंदर आपको पोजीशन लेनी चाहिए एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल। यदि रुपये डेप्रिशिएट होता है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर और टेक्सटाइल्स में जो है वो बेहतरी आ जाती है। एक में एक्सपोर्ट साइड है और दूसरे के अंदर जो है आपकी वो, क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड है, सारा डॉलराइज्ड है, सो अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा होगा तो उसकी प्राइस भी। जैसे व्हाट डू यू थिंक किस हद तक रुपये डेप्रिशिएट हो सकता है या होना चाहिए, क्योंकि IMF की तरफ से 20% आई है जो कि आई थिंक इट्स क्वाइट हाई। दैट इज क्वाइट हाई। आई रियली बिलीव कि देखें, आपकी जो हिस्टोरिक एवरेज भी रही है वो 4 से 5% के दरमियान में रही है। अबाउट 3 साल होने वाले हैं कि हमने डिप्रिसिएशन नहीं होने दी रुपये की, रुपये को वहाँ पे रोका हुआ है। सो जनरली 10% एंड अबाउ, ठीक है, 10% शुड बी द क्राइटेरिया कि जितनी होनी चाहिए। देखिए, ये हमारा व्यू है, सर्टनली गवर्नमेंट उसको अपने लेवल पे 115 रुपये तक। अगर 10% आप करेंगे तो 115 नहीं, 117 और 120 रुपए के आसपास चला जाएगा कहीं पे। क्योंकि देखें, आपके जो कंसर्न्स हैं, नंबर 1 कि आपने एक्सपोर्टर को बेनिफिट देना है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को, जो कि थोड़ा सा परेशान है कि अगर डिवैल्यूएशन हो गई तो मेरी आज की इन्वेस्टमेंट एब इनिशियो ही वो डिवैल्यूएशन होते के साथ ही 10% या 15% या वट एवर द फिगर इज, उस हिसाब से नीचे आ जाएगी। लेकिन फ्रेश फॉरेन इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस पॉइंट को क्यों नहीं देखते हैं जो फ्रेश अभी तक बैठे हुए MSCI की वजह से $500 मिलियन का इन्फ्लो के लिए बैठे हुए, ऐसे में तो ज्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर रुपये डेप्रिशिएट हो जाता है वो जल्दी से आके इन्वेस्ट कर ले, फिर शायद आगे जाकर रुपये बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज नहीं देखता। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, अपना टर्म पूरा करे, ठीक है, PM इस वक्त शायद खाकान अब्बासी हैं, और अगर इसी सेटअप को लेके ये अपने इलेक्शंस तक जाएं और उसके बाद एक स्मूथ प्रोसेस से एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट दूसरे पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर रेंज पास ऑन करेगी तो पाकिस्तान में इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। और यही चीज है जिसको सारा इन्वेस्टर कम्युनिटी भी देखना चाहेगी, एंड दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू सी। पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी द विनर, दे शुड प्रिवेल, और किसी भी किस्म की कॉन्फ्रेंटेशनल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त, उसको मतलब है कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स और ये सारा कुछ ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन से पहले हम इसी तरह की मार्केट देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले नॉइज बिल्कुल बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर, लेकिन अगर बहुत स्ट्रीट लेवल पे शोर शराबा होना शुरू हो जाएगा तो वो मार्केट को नेगेटिव रखेगा और अनसर्टेनिटी बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है, एक और शामिल करते हैं अजीजुल्लाह साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो रोशन पैकेजेस के बारे में बता दें, रोड के बारे में, अल शहीद कॉर्पोरेशन, अल शहीद कॉर्पोरेशन, और दूसरा क्या पूछा आपने? जी रोशन पैकेजेस, राशन पैकेजेस और अल शहीद कॉर्पोरेशन। जी दोनों अनफॉर्चुनेटली हमारे रिसर्च हाउस में कवर नहीं होते, तो मेरा व्यू जो है इसके ऊपर कोई इन्फॉर्म्ड नहीं होगा।
लेकिन दोनों पे मैं सजेशन इनको ये दूंगा कि जो भी रिसर्च हाउस या कोई भी ब्रोकर जो कि अच्छी स्टैंडिंग रखता है उसकी कोई रिसर्च रिपोर्ट हो तो उसको देखें या कंपनी के अकाउंट्स को पढ़ें। मैं एक जेनेरिक कमेंट जरूर कर सकता हूं कि अल शहीर नीचे आया है और उसके नीचे आने की वजह कुछ उसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे जिसमें प्रॉब्लम आई या कुछ कैंसिल हुए, इस तरह की खबरें जमदाया में सुनते रहते हैं, उनकी वजह से देयर हैज बीन अ वीकनेस इन दी स्टॉक। नंबर 2, रोशन पैकेजेस की जो सब्सक्रिप्शन हुई थी जिन लेवल पे हुई थी वो बहुत हाई था जिस टाइम पे वो सब्सक्राइब हुआ था, और नेचुरली उसके बाद से मार्केट एक नेगेटिव जोन के अंदर है तो वो उसने अपने आप को ऑटो करेक्ट भी किया, उसके बाद उसमें सेलिंग प्रेशर भी था। अब उनके एग्जिस्टिंग लेवल्स के ऊपर मे बी इट कैन बी अ टाइम कि इसको बाय किया जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी कंपनी को पढ़े बगैर उसके जाने बगैर फंडामेंटल ग्रोथ एज सच नजर नहीं आ रही ऑब्वियसली मुझे फिलहाल, क्योंकि मैंने शायद इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं उसके बारे में, तो मैं इतना ज्यादा उसको डाइवर्ज नहीं कर सकता। स्पेकुलेटिव आवाज से मैं एक सवाल करूंगा। हाँ बिल्कुल, एक कॉलर शामिल कर देते हैं। सलीम साहब कोयटा से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब। जी जनाब, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस नहीं थी कि अभी जो सब हालात चल रहे हैं इसमें हम मतलब किस को ज्यादा बैठे टेक्निकल या फंडामेंटल्स की तरफ ही देखें या टेक्निकल्स की तरफ ही हमें कहा जाता है कि खास लेवल के बाद मार्केट जो है वो उस लेवल को ब्रेक कर सकती है, तो हम किस चीज से ज्यादा नजर रखते हैं, टेक्निकल्स को या फंडामेंटल्स को देखते हैं? अच्छा, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो ज्यादा टेक्निकल ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये ना कि अगर अभी इस वक्त हम फंडामेंटल आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट। जी हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी। में आ गया। देखिए पहली बात आपका टर्म भी तो डिपेंड करता है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म जाएंगे तो फिर टेक्निकल्स को फॉलो करना इससे जरूरत इतनी नहीं होती, और टेक्निकल्स को नॉर्मली जो डे ट्रेडर्स हैं या डे जॉब्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, और टेक्निकल जो होता है ये भी एक कैच-22 सिचुएशन होती है, बिकॉज आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच हो गया, वो कब रिवर्ट हो जाए कब ना रिवर्ट हो, सो क्या न्यूज आ जाए उसको चेंज करते, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, और स्टैटिस्टिकल के ऊपर एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड सजेशन नहीं देता। सो बिकॉज देखें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसके अंदर अ पर्सन हैज टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस कि वो क्या कर रहा है, और उसकी एबिलिटी टू सेल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स विल प्रिवेल एट द एंड ऑफ द डे, अल्टीमेटली वही प्रिवेल करेगा, चाहे आप इसको उल्टा करके देखें सीधा करके देखें, उनको सामने रखना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। खालिद साहब हमें कॉल कर रहे हैं लाड़काना से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ इसके ये स्टील के रेट जो इतने चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, ये क्या वजह है, किस वजह से चढ़ रहे हैं? अच्छा थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, किस शेयर की बात कर रहे हैं? स्टील के बारे में, स्टील के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसकी थोड़ी वजह फरमाएंगे किस वजह से ये स्टील फैक्ट। देखें सिंपल सप्लाई एंड डिमांड इशू। पाकिस्तान में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही थी, अभी तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ रुकी है, कुछ चीजें जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े हुए हैं कि ये क्या इतनी खपत होगी, क्या इतनी डिमांड होगी, ये होगा वो होगा फलाना होगा, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस स्टील विल अट्रैक्ट गुड रिजल्ट्स, इट विल अट्रैक्ट गुड वैल्यूएशंस, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, और डिमांड के मुताबिक जो सप्लाई होगी तो इससे सप्लाई एंड डिमांड थिंग, द डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, सो द प्राइस इज गोइंग टू गो अप। सो इट्स वेरी सिंपल। हमें स्टील सेक्टर मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। ठीक है, कॉलर जिया हुसैन इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर साहब, मैंने पता करना था कि ये जो मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है कुछ दिनों से, इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, या इसमें ये भी एक फैक्टर है जो ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा पिछले 1-2 दिनों से हम सुन रहे हैं कि इतना बड़ा गैप आ गया इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, एंड अगर ये ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा कम कर सकते हैं या इस तरह हो सकता है, तो इज देयर इन द शॉर्ट टर्म यू पीपल सी के मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड इंशाल्लाह होना होगा? इस पर जरा लाइट डालती तो आई थिंक इन दो के फैक्टर्स के अलावा भी काफी चंद एक फैक्टर्स और लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई लाइक इन्वेस्टर जो कि टोटलिटी में व्यू लें, सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है, सर्टनली इस वक्त कुछ मैक्रो लेवल कंसर्न्स हैं विच आर मोर रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस। उसके अलावा जब आप अपना करंट अकाउंट देखें या कैपिटल अकाउंट देखें या आप अपना फाइनेंशियल अकाउंट देखें, हर एक के अंदर आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ वीकनेस। उस वीकनेस को एड्रेस करने के लिए वी नीड पॉलिसीज टू बी देयर, एंड दोज पॉलिसीज शुड बी अनाउंस्ड सूनर देन लेटर।
बिकॉज आपने कोई भी क्राइसिस सिचुएशन होती है या नजर आना शुरू हो जाए, एक हालात ऐसे बन जाते हैं आपके कि आप एक अनसर्टेनिटी की पीरियड में जाते हैं. जो ही आप अनसर्टेनिटी की पीरियड में जाते हैं तो जिन चीज़ों में आपको पहले प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी और आपकी आंखें वहाँ से बंद होती हैं, अचानक आपको वो भी बहुत बड़े मसले नजर आना शुरू हो जाते हैं. तो पाकिस्तान भी एग्जैक्टली इसी सिचुएशन से गुजरा है इस वक्त कि आप जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन खराब नहीं हुई थी तब तक 53,000 पे 60,000 लग रहा था, 60 से 62 लग रहा था, और अचानक वो पॉलिटिकल टर्मोल आया और आपको अनसर्टेनिटी नजर आई, आपको 40-35 और उसके साथ आपको स्ट्रक्चरल वीकनेसेस भी नजर आई. मैं ये कहूँगा ये स्ट्रक्चरल वीकनेसेस कोई अभी की बात नहीं है. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है इट्स नॉट समथिंग विच इज न्यू. आपने जब सीपैक किया था उस वक्त जो ये इम्पोर्ट हो रही थी, इम्पोर्ट जिस तरह की हैवी इक्विपमेंट में थी, तो इम्पोर्ट का नंबर आपका रिजल्टेंटली इंक्रीज होना था. आई एम नॉट कंसर्न, मेरा कोई खास कंसर्न नहीं है कि इम्पोर्ट का नंबर अगर वो बढ़ा है तो वो जिस फैक्टर की वजह से बढ़ा है वो मेरे हिसाब से शायद फिर भी सस्टेनेबल है. मेरे लिए ज्यादा बड़ा कंसर्न ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय रिड्यूस हो गई. ठीक है, फिर वही बात आती है फिर रिजर्व, क्योंकि इम्पोर्ट जब ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो इम्पोर्ट बढ़ रही है तो रिजर्व कम हो रहे हैं, रिजर्व कम हो रहे हैं और रिजर्व कम हो रहे हैं. उसके बाद उसमें प्रेशर आएगा, इम्पोर्ट कवर आपका अंडर क्वेश्चन मार्क आएगा. और दूसरी बात यह है कि आपने जो लोन रिटायर करना है उसमें से भी $5-6 बिलियन की आगे से पेमेंट्स आ रही हैं और वो पेमेंट आएंगी. अगेन दैट वुड बी एन इम्पैक्ट ऑन द रिजर्व. सो मेरा ख्याल है कि जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं उसमें पीएम लेवल के ऊपर कुछ मीटिंग्स अभी हो रही हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इस मसले को हल कैसे करना है. आई थिंक इस वक्त जो लीडरशिप होती है उसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो फ्रंट पे आके एक स्ट्रैटेजी के साथ आती है और वो स्ट्रैटेजी अनाउंस करती है. स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है. सो व्हाट द मार्केट नीड्स इज अ क्लियर कट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज the balance of payment issue that we have entered into, that we are facing. It's a big challenge. लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए you need somebody who needs to stand up and tell you कि ये इस तरीके से होगा जो रोड मैप अप्रिशिएट भी किया जा सके. ठीक है. अच्छा, मेरा जो सवाल तो पहले आया था कि स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में हम ज्यादातर कॉल्स देखते हैं कि लोग स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में जो है वो ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करना, ज्यादा समय जो कॉल्स हमारे पास आती है वो ज्यादातर उनकी आती हैं जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में काम करते हैं, क्योंकि शायद जो फंडामेंटली चल रहे होते हैं उनको इतनी परेशानी नहीं होती. स्पेकुलेटिव स्टॉक में आकर वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा होता कि बाय करें, होल्ड करें, सेल करें. तो क्या स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आप समझते हैं बेहतर डिसीजन होता है? कभी कभी आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, लेकिन वही बात उनकी फंडामेंटली वो स्ट्रांग नहीं होते जी. एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स जो होते हैं वो नॉर्मली एक 4 से 5% लोग उसमें विनर होते हैं, 95% लूजर होते हैं. तो आपको इन्वेस्ट करते हुए इसी का ध्यान रखना है कि आपने लूजर बनना है कि आपने विनर बनना है. तो इसमें चाम बड़ा होता है. चाम ये होता है कि जी ₹1 एक महीने बाद ₹2 हो सकता है. तो लोग इसी चक्कर में जाते हैं और वो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाते हैं कि जी हम इसके अंदर जाएं, इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद हम मार्केट में तबाही मचा दें. लेकिन अगर यही लोग उसके कॉन्ट्रा साइड देखें तो पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने 1400% अप्रिशिएट किया. केस इन पॉइंट ऑटोज, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग. अगर आपने उस वक्त इसके अंदर पोजीशन ली होती तो आपने आज बगैर स्पेकुलेशन किए हुए अगर ₹100 डाले होते तो 1400 बन गए और बिल्कुल छोड़ दिया होता, बाय सेल भी ना किया होता, आपने रख दिया होता, इन्वेस्ट करके आप सो जाते. उसके बाद आपको पता चलता है कि जी मैंने 4-5 साल में अपना ₹1 करोड़ 14 करोड़ रुपए कर लिया. सो यही चीज अगर आपने ऑटो में की होती, यही चीज अगर आपने किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर जिसमें नजर आ रहा था कि वैल्यू है, देयर इज अ स्टोरी और जिसमें ग्रोथ है, तो आप ऐसे पैसे बना लेते बनस्पत इसके कि आप उसकी बाय सेल के अंदर किसी भी जगह पे रॉन्ग फुट फंसेंगे और मेंटल स्ट्रेस अलग होता है. ठीक है, नौमान साहब हम कॉल कर रहे हैं फैसलाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. जी नौमान साहब. वालेकुम सलाम सर. नवाज साहब टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज. कॉल डिस्कनेक्ट हो गई. ठीक है. अच्छा, लास्ट में मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा, अब इस तरह की मार्केट में व्हाट वुड यू से क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से सेक्टर्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं इस वक्त? देखिए, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है इस मार्केट के अंदर, नंबर 1 जो डिप्रिसिएशन प्ले है रुपये का, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. उसके अंदर आपके ऑयल एक्सप्लोरेशन के सेक्टर्स, मतलब उस सेक्टर में आप जाएं, उन स्टॉक्स के अंदर जाएं. दूसरा, आप टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनीज के अंदर जाएं जिनके अंदर एक्सपोर्ट्स हैं और वो उसकी नेचुरल बेनिफिशरी हो सकती हैं. बैंक मुझे अच्छे लगते हैं इवन गिवन एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है उसकी रिवर्सल नजर आ रही है और उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है वो बैंकिंग सेक्टर है. तो इसके अलावा मुझे नजर आता है स्टील सेक्टर, आई लाइक इट. सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई है कि वहाँ पे प्राइस करेक्शन आई है इन पंजाब बिकॉज ऑफ वीकर डिमांड, लेकिन दैट वीकर डिमांड कैन बी अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट.
बिकॉज ऑब्वियसली जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उनके अंदर हलचल हो रही होती है, तो देयर इज अ सेटअप दैट इज इन प्लेस. अगर उस सेटअप के अंदर थोड़ा सा मसला होना शुरू हो जाए तो सर्टनली हर चीज़ जो है वो स्लो प्रोसेस चली जाती है, बैक बर्नर पे चली जाती है, उससे एक प्रेशर आ जाता है. ठीक है, थैंक यू सो मच नासिर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कामरान नासिर हमारे साथ मौजूद है, CEO GS ग्लोबल. और कामरान साहब से हमने बात की ओवरऑल एक मार्केट का गोइंग हेड क्या सूरत हाल रहेगी, उस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की, आपकी कॉल्स भी नहीं. कमोडिटीज़ और फॉरेक्स करेंसीज की सूरत हाल देख लेते हैं. सबसे पहले कमोडिटीज़ में गोल्ड की पर तोला प्राइस आज रही 50,771 रुपीज़ के लेवल पर. 10 ग्राम प्राइस 43,574 रुपीज़ के लेवल पर है. इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $1,285.80 पर आउंस पर रहा. WTI $47.37 पर बैरल. ब्रेंट क्रूड ऑयल $51.66 पर बैरल के अराउंड हमने देखा. फॉरेक्स करेंसीज में US डॉलर बाइंग रही 107.70 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 108 रुपीज़. यूके पाउंड स्टर्लिंग बाइंग रही 136 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 137.75 रुपीज़. यूरो में बाइंग रही 124.25 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 125.45 रुपीज़. सऊदी रियाल में बाइंग रही 28.15 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 28.35 रुपीज़. यूएई दिरहम में बाइंग रही 28.85 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 29.10 रुपीज़. जापानीज येन में बाइंग रही 0.95 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 0.98 रुपीज़. चाइनीज युआन में बाइंग रही 15.70 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग 15.85 रुपीज़. और लास्ट में कुवैती दिनार जिसको बाइंग रही 347 रुपीज़ के लेवल पर, सेलिंग रही 349.50 रुपीज़ के लेवल पर. यदि कमोडिटीज और फॉरेक्स करेंसीज की सूरत जहाँ तक मार्केट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फिलहाल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स कंटिन्यू रहते हुए नजर आ सकते हैं. और इसी तरह मार्केट में जो है वो वॉल्यूम भी थोड़ा सा स्लो जो है वो नेगेटिव होते हुए या कम होते हुए नजर आएंगे. इसके साथ ही प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. फॉर फीडबैक you can email us at bullsandbears@ttv.com.pk. Do take care of yourself and your investments. Very good luck for tomorrow. सैयद मोहम्मद तारिश और बुल्स एंड बेयर्स की टीम को इजाजत दीजिए. अल्लाह.